Bismillahirrahmanirrahim. In genital system, we discuss about totally only the single topic. The sign of the test is remaining. So in today's lecture, we will discuss how the test is designed. I already say you that the test is found at the abdominal region, and then they descend up to the inguinal region, then go into the scrotum. So this is a process which hormone influencing how they are testicle, testes, ovary. We will discuss genital ducts of the male and female, and vagina, and the external genital organ of the male and external genital organ in the female, and the congenital anomalies we discuss. So now we discuss about the descent of the testes. So I already say you that the gonads, ovary and testes are found at the abdomen at the lumbar region. They then descend ovary up and occur at the true pelvis, while the testes from the inguinal region also go into the scrotum. So testes develop retroperitoneally. Retroperitoneally, which organ are the retroperitoneally? ये आपकी क्रॉस एनाटॉमी में क्वेश्चन आता है. तो kidneys, ureters are the retroperitoneally. So testes also found in the retroperitoneally and go into the scrotum, and other some organ, pancreas, also the retroperitoneally, except the tail of the pancreas. So testes develop retroperitoneally in the abdominal region and must move caudally, pass through the abdominal wall to reach into the scrotum. So this is the pathway where testes form retroperitoneally at the lumbar region and move caudally and pass through the abdominal wall. There are the three abdominal muscles which form the abdominal wall: external oblique muscle, internal oblique muscle, and transverse abdominalis. These are the muscles which form the abdominal wall. So through these abdominal wall to reach into the scrotum. Toward the end of the second month, urogenital mesentery attached to the testes and mesonephros to the posterior abdominal wall. On the second month, urogenital mesentery, urogenital यानी कि urinary system और genital system में testes internal organ है, तो वहाँ से एक mesentery जो है उनको अटैच करती है posterior abdominal wall. तो second month में urogenital mesentery attached to the testes and mesonephros to the posterior abdominal wall. As with the degeneration of the mesonephros मैंने आपको बताया था किडनी के 3 सिस्टम है, प्रोनेफ्रोस, mesonephros and metanephros. प्रोनेफ्रोस तो टोटली रुडिमेंट्री होती है, नॉन फंक्शनिंग होती है. mesonephros फॉर शॉर्ट टाइम के लिए फंक्शनिंग होती है. देन mesonephros also degenerate. So ये कह रहा है with the degeneration of the mesonephros. ऊपर वाली स्टेटमेंट में यूरोजेनाइटल मेसेंट्री किसके के साथ अटैच होती है? One is the testis, other is the mesonephros. If the mesonephros is degenerated, the attachment serve as a mesentery of the gonads. पहले जो थी यूरोजेनाइटल मेसेंट्री थी, यूरोजेनाइटल. अब यूरिनरी का जो सिस्टम था mesonephros, इसलिए यूरोजेनाइटल मेसेंट्री. अब mesonephros डिजेनरेट हो गया, अब ये जाके ओनली टेस्टिस और ओवरी बची. तो इसको अभी कह रहे हैं कि अभी उसको कह रहे हैं कि मेसेंट्री ऑफ द गोनेड्स. mesonephros डिजेनरेट हो जाता है. नाउ वी कॉल एज ए mesentery of the gonads. The descent of the testes is under the control of the gonadotropic hormone.
Gonadofollicular stimulating hormone and luteinizing hormone. These are the gonadotropin hormone, which affect on the testes. They secrete in adult life the testosterone. The descent of the testes is under the control of the gonadotropic hormone, follicular stimulating, and luteinizing hormone, accompanied by the shortening of the structure called as a gubernaculum. एक तो हार्मोन है जो इसको डिसेंड करने में हेल्प करता है. One is the gubernaculum. What is a gubernaculum? Gubernaculum is formed during the development the mesonephros and indifferent gonad. Indifferent gonad यानी कि अभी पता नहीं है कि either it is a ovary, either it is a testis into the peritoneal cavity, causing the peritoneum to make a fold over there. Peritoneum. ये कह रहा है कि gubernaculum during the development of the mesonephros और gonads, indifferent gonad की दरमियान ये develop होती है. जैसे gonads bulge into the peritoneal cavity, causing the peritoneum to make bulge. जैसे bulge peritoneum की दो layer है. One is the anterior peritoneum, other is the posterior peritoneal layer. तो posterior peritoneal layer में जैसे mesonephros और indifferent gonads वहाँ पे bulge करके बैलून में अगर आप फिंगर डिप करेंगे तो एक पाउच बन रहा था और उसके ओवरलाइन जो पाउचिंग बन रही है उसको हम कह रहे हैं गुबर्निकुलम. So indifferent gland bulge into the peritoneal cavity, causing the peritoneum to make a fold over there. That fold extend upward from the upper pole of the mesonephros to the diaphragm. ये जो फोल्ड है वो एक्सटेंड हो रहा है किडनी के अपर पोल से mesonephric लेवल. अब mesonephric के बाद मेटानेफ्रस होगा ना, तो ये कह रहा है कि ये जो फोल्ड है वो एक्सटेंड कर रहा है अपवर्ड फ्रॉम द अपर पोल ऑफ द mesonephric, अपर पोल ऑफ द किडनी टू द डायफ्राम. डायफ्राम जो रेस्पिरेटरी मसल है जो सेपरेट द एब्डोमिनल कैविटी टू द थोरेसिक कैविटी, तो इसका जो अपर पोर्शन है गुबर्निकुलम का वो एक्सटेंड हो रहा है अपर पोल ऑफ द mesonephric टू द डायफ्राम एंड डाउनवर्ड फ्रॉम द लोअर पोल ऑफ द mesonephric टू द इंग्वाइनल रीजन. तो ये जो फोल्ड बन रहा था पेरिटोनल फोल्ड उसको हम गुबर्निकुलम कह रहे हैं. इनिशियल स्टेज में mesonephros और इंडिफरेंट गोनेड बल्ज कर रहे थे पेरिटोनल कैविटी. जो पोस्टीरियर पेरिटोनल वाल थी, लेयर थी, उसको वो पेनिट्रेट कर रहे थे, उसको बल्जिंग दे रहे थे. तो उस बल्जिंग के दौरान ये पेरिटोनियम का एक कवरिंग उसके ऊपर बन रहा था. वो सब जैसे वो mesonephros तो इनिशियली जो अपर पोर्शन ऑफ द mesonephros, अपर पोर्शन ऑफ द टेस्टिस समझें कि वहाँ से वो अराइज होता है और टू द डायफ्राम तक. और लोअर पोल में भी ऐसे होते हैं. तो mesonephros का लोअर पोल टू द इंग्वाइनल रीजन तक ये गुबर्निकुलम की अटैचमेंट होती है. गुबर्निकुलम क्या था? इट इज द लेयर फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम covering the mesonephros and indifferent gonad. और जो उसका जो गुबर्निकुलम का अपर पोल था, जो अपर पोर्शन है वो अपर पोल ऑफ द mesonephros to connect with the diaphragm, and lower pole जो है lower pole of the mesonephros to the inguinal region तक वो आ रहा है. Upper and lower part are called cranial and caudal mesonephric ligament. mesonephric के साथ अटैच है तो upper को cranial mesonephric ligament, lower को caudal mesonephric ligament. As the mesonephric degenerates, so cranial mesonephric ligament disappear. Meanwhile, the testes increase in size. So caudal mesonephric ligament now belong to the testes are called as a ligamentum of the testes, also known as a caudal genital ligament. ठीक है. जो गुबर्निकुलम का दो पोर्शन में अपर पोर्शन लोअर पोर्शन. अपर पोर्शन जो था अपर पोल ऑफ द mesonephric टू द जो डायफ्राम के साथ अटैच था. लोअर पोर्शन लोअर पोल ऑफ द mesonephric और टू द इंग्वाइनल रीजन. mesonephric के साथ अनडिफरेंटेड गोनेड के साथ भी अटैच था. जैसे mesonephric डीजनरेट हो गया तो अब जो क्रेनियल पोर्शन mesonephric लिगामेंट वाला जो डिसअपियर हो जाएगा. मीनवाइल द टेस्टिस इंक्रीज इन साइज. सो द caudal mesonephric जो लिगामेंट था नाउ बिलोंग टू द testis and called as a ligamentum testis, also known as a genital ligament. Ligamentum of testis or the genital ligament. वो जो mesonephric ligament था cranial और caudal
अब उसको क्रेनियली जो मीजोनेफ्रिक डिसअपियर हो गया तो वो डिजेनरेट हो जाता है। बाकी जो लोअर पोर्शन है तो मीजोनेफ्रिक के साथ टेस्टिस के साथ या ओवरी के साथ भी वो अटैच था, इसलिए नाउ वी कॉल्ड इट testis ligament or testis or genital ligament. Ligament extend from the caudal pole of the testis. It is a mesenchymal condensation rich extracellular matrix called as a gubernaculum. तो पेरिटोनियम का इनिशियली क्या हुआ था, ड्यूरिंग द initial stage of the development, gonad, indifferentiated gonad, either ovary or testis, and the mesonephron, they bulging to the posterior peritoneal wall. posterior peritoneal wall को जैसे bulging करेंगे तो उसके over the bulging peritoneal जो wall है वहाँ से एक ये structure बन रहा था जो उसका upper portion, upper pole of the mesonephron attached to the diaphragm, and the lower portion from the lower portion of the mesonephron and testis to the inguinal region. Upper portion में जैसे mesonephron degenerate हो जाता है तो upper portion जो cranial ligament of mesonephron था वो डिसअपियर हो जाएगा। अभी लोअर पोर्शन में टेस्टिस जो है साइज में इंक्रीज हुआ है और कार्डल मीजोनेफ्रस नाउ बिलोंग टू द टेस्टिस, सो वी कॉल्ड इट ए testicular ligament, ligament of the testis, also known as a genital ligament. So this ligament extends from the caudal pole of the testis, caudal pole of the testis, which is a mesenchymal. अब ये mesenchymal condensation है, mesenchymal origin है पेरिटोनियम, तो उसका ये फोल्ड था, तो फोल्ड जैसे वो कंडेंस हो गया तो mesenchymal condensation rich extracellular material called as a gubernaculum. Prior to descent of the testis, this gubernaculum terminates into the inguinal region between the internal and external abdominal oblique muscle. मैंने आपको कहा कि टेस्टिस एब्डोमिनल वॉल के थ्रू डिसेंड करते हैं। एब्डोमिनल वॉल 3 मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। तो ये जो period to the descent of the testis, the gubernaculum terminated, जो lower portion inguinal region पे terminated कर रहा था वो between the external and internal and external abdominal oblique muscle के बीच में. The testis begin to descend toward the internal inguinal ring. Extra abdominal gubernaculum form and grow from the inguinal region toward the tongue. The testis जैसे descend करेगा internal inguinal ring. One is the external inguinal ring and the internal inguinal ring. We discussed the hernia. Inguinal hernia, there are 2 types of inguinal hernia. One is the direct inguinal hernia and the other is the indirect inguinal hernia. Indirect inguinal hernia pass through the both opening. One is the internal inguinal ring are opening and the external इंग्वाइनल रिंग, इन दोनों में से क्रॉस करेंगी तो ये इनडायरेक्ट हुआ। अगर वो डायरेक्ट इंटरनल इंग्वाइनल रिंग को बाईपास करके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से बल्ज करके एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग से वो पास करता है तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो अब ये जैसे टेस्टिस बिगिन टू डिसेंड टुवर्ड द इंटरनल इंग्वाइनल रिंग पहले आता है, जैसे एब्डोमिनल एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है आपका, तो वहां से थोड़ा सा मीडियली आपका 2 इंच अबो एंड मीडियली देयर इज ए इंटरनल इंग्वाइनल रिंग। ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल जो है, तो 3 मसल थे, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनल। ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल में ओपनिंग होती है, जो इंटरनल एब्डोमिनल विसरा जो है हर्निया में कभी कभी गट आ जाता है, कभी कभी मोस्टली गट और ओमेंटम इज पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन, तो ओमेंटम ही आता है और गट भी आता है। तो इंटरनल इंग्वाइनल रिंग ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल में एक ओपनिंग होती है, वहां से एब्डोमिनल कंटेंट्स एनी जैसे भी प्रेशर बढ़ेगा तो हर्निया क्यों होती है, एक तो एब्डोमिनल वॉल्स कंजेनाइटली वीक होती है, तो ये इंटरनल इंग्वाइनल रिंग और एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग अगर वीक होगी
तो उसमें भी होगा। अगर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, कोई भी चीज जो एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाएगी, तो दे विल लीड द हार्निया। उसमें क्या क्या आ सकता है? उसमें आपका क्रोनिक कफ आ सकता है। क्रोनिक कफ में एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, असाइटिस आ जाता है, और कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, हेमोरॉइड आ जाता है, बीपीएच आ जाता है। बीपीएच जो भी प्रेशर है, किसी को बीपीएच में बेनाइन हाइपरप्लेजिया, मैंने आपको बताया था, प्रोस्टेट की डिजीज होती है बूढ़ों में, ओल्ड एज में, मेल में। तो वो क्या आता है, प्रेशर से वो अपने यूरिन पास करने के लिए उनको प्रेशर लगाना पड़ता है। और किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो वो स्टूल पास करके लिए उसको प्रेशर लगाना पड़ता है। वो प्रेशर एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाता है, और एब्डोमिनल प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो उस एब्डोमिनल विसरा जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी वीकनेस होगी वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और ये वहां से बाहर निकलेंगे। अगर वो इंटरनल रिंग से आए और इंग्वाइनल कैनाल से लेके एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग से निकले, दिस इज द इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया। डायरेक्ट ये है कि इंटरनल इंग्वाइनल रिंग को बाईपास करे और डायरेक्ट पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, हेजल्स ट्रायंगल, इंग्वाइनल ट्रायंगल जो जिसको कहते हैं, उसकी बाउंड्री में फिर आ जाती है कि मीडियली रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है, और लोअर पे इंग्वाइनल कैनाल होता है, और लेटरली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, वेसल होती है। तो इंग्वाइनल और इनडायरेक्ट को हम ऐसे भी डिफरेंशिएटेड करते हैं। लेटरल टू द inferior epigastric vessel, this is a indirect. Medial to the inferior epigastric, this is a direct. मीडियल होगी तो एक इंटरनल रिंग आप उसके लेटरल हो जाएगी, तो अब वो डायरेक्टली जो निकलेगी सोडायर से निकलेगी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, इसलिए उसको डायरेक्ट करते हैं और बाईपास करती है इंटरनल इंग्वाइनल रिंग को। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से बल्ज करेगी और एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग से वो पास करके स्क्रोटम में जाएगी। फिर वो हर्निया के कंटेंट्स होते हैं, वो इधर ओमेंटम हो या सही आपका गट हो, तो ये है। तो इसकी एक ये है, और दूसरा आगे चल के हम प्रोसेस वेजिनलिस को डिस्कस करेंगे। वो पेरिटोनल फोल्ड है जो स्क्रोटम तक आता है, फिर डिजेनरेट डिसअपियर हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है। अगर वो परसिस्टेंट रहे तो उसकी वजह से कंजेनाइटल हर्निया होती है, कंजेनाइटल हाइड्रोसील होती है। हाइड्रोसील के एब्डोमिनल फ्लूइड जो है वो डिसेंड करता है, और हर्निया जो एब्डोमिनल विसरा है वो आइदर गट हो, आइदर omentum, they will descend. So testes begin to descend toward the internal ring and the extra abdominal portion. अब इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द गुबर्निकुलम कहाँ से शुरू हुआ? लंबर रीजन पे, जहाँ पे मीजोनेफ्रस और इनडिफरेंट गोनेड ओवरी और टेस्टिस की फॉर्मेशन हो रही थी, तो वहाँ पे एक पेरिटोनियम का स्ट्रक्चर बैंड बना था, उसको हम कह रहे थे इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन। उसके दो पोर्शन थे इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द गुबर्निकुलम। तो एक तो क्रेनियल पोर्शन, अदर द कार्डल पोर्शन। क्रेनियल पोर्शन जो मीजोनेफ्रल के अपर पोल से डायफ्राम तक अटैच था, लोअर पोर्शन मीजोनेफ्रल के लोअर पोर्शन, और टेस्टिस से का पोर्शन वो इंग्वाइनल रीजन तक आ रहा था, उसका है ये कार्डल पोर्शन। अपर पोर्शन जो है डिजेनरेट हो गया जैसे मीजोनेफ्रिक सिस्टम डिजेनरेट हुआ था, बाकी लोअर पोर्शन बना था, उसको हमें टेस्टिकुलर लिगामेंट भी कह रहे थे, जेनाइटल लिगामेंट भी कह रहे थे, वो इंट्राएब्डोमिनल। अब इंग्वाइनल रीजन से नीचे भी जाएगा टेस्टिस स्क्रोटम में, तो अब जो गुबर्निकुलम का पोर्शन होगा उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द गुबर्निकुलम फ्रॉम form and grow from the inguinal region toward the scrotal swelling. इंग्वाइनल रीजन से अप टू द स्क्रोटम में ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल गुबर्निकुलम का पोर्शन फॉर्म होगा. When the testis pass through the inguinal canal, the extra abdominal portion of the gubernaculum contract the scrotal floor. Normally the testes reach the inguinal region approximately 12th week. 12th week means third month.
थर्ड मंथ में नॉर्मली जो टेस्टिस होता है फ्रॉम द लंबर रीजन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द लंबर रीजन दे डिसेंड एंड रीच इनटू द इंग्वाइनल रीजन approximately in the 12th week of the gestation. Then from third month के बाद they migrate through the inguinal canal by the 28th day and reach in the scrotum by the 33 week. तो थर्ड मंथ तक ये इंग्वाइनल रीजन तक पहुंच जाता है। थर्ड मंथ के बाद इंग्वाइनल रीजन ये वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रेस्ट होगा और अप टू द 28th वीक तक ये इंग्वाइनल कैनाल से पास होगा और 33 वीक तक ये स्क्रोटम में पहुंच जाएगा। द process of the descent testes are influenced by the hormone including the androgen and Mullerian inhibitory substance. तो दो ये हार्मोन है। तो process of the descent testes are influenced by the mostly androgen यानी कि testosterone and Mullerian inhibitory substance. During the descent, blood supply of the testes from the aorta is retained and the testicular vessel extend from the original number position to the तो हम टेस्टिकुलर आर्टरी की अगर बात करते हैं तो जहां से लंबर रीजन पे जहां पे रीनल आर्टरी की ओरिजिन होती है वहां से थोड़ा सा नीचे टेस्टिकुलर आर्टरी की और ये डिसेंड करती है अप टू द स्क्रोटम और इसकी जो ब्लड सप्लाई ये जो venous supply they also reach from there and enter into the on the left side in the left renal vein, on the right side superior vena cava. तो एक डिजीज होती है वेरिकोसील. वेरिकोसील इज द एब्डोमिनल डायलेटेशन ऑफ द वेरिकोसील वेन्स. वेरिकोसील वेन जो है स्क्रोटम में होती हैं और वो इस वजह से होती हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी कि मोस्टली लेफ्ट साइड वाली जो टेस्टिकुलर वेन होती है वो बिल्कुल वर्टिकल होती है और अगेंस्ट द प्रेशर जो वेनस ब्लड है वो रिटर्न होता है तो वो वापस दिल की तरफ जाएगा तो अगेंस्ट ये अगर वो बिल्कुल सीधा वर्टिकल है तो उसको प्रेशर मांगने और इस प्रेशर की वजह से वो बैकवर्ड प्रेशर बढ़ता है और बैकवर्ड प्रेशर की वजह से डायलेटेशन ऑफ द ये वेसल्स होती हैं उसको हम वेरिकोसील कहते हैं. वेरिकोसील एक तो एब्नॉर्मलिटी ये भी होती है दूसरी कोई भी मास हो जो इसको कंप्रेस करे तो वो हो जाती है. The process of the descent test is influenced by the androgen, mostly testosterone, and some part of the Mullerian inhibitory substance. During the descent, blood supply to the testes from the aorta. ये फर्क है तो जो किडनी है वो नीचे से ऊपर जाती है और पहले वो पेल्विक रीजन में लेती है अपनी ब्लड सप्लाई फ्रॉम द सेक्रल रीजन से और लोअर लंबर से और वो टेस्ट जो आर्टरीज है वो डिसअपियर हो जाती है और कभी कभी प्रेसिशन रहती है. जैसे वो अपवर्ड जाएगी तो फिर वो अपर लंबर रीजन से ब्लड सप्लाई की अराइज होती है वहाँ से. लेकिन जो टेस्टिस है वो जहाँ से फॉर्मेशन हुई अप टू द स्क्रोटम तक वो डिसेंड सेम आर्टरी करती है. ड्यूरिंग द डिसेंड ब्लड सप्लाई टू द टेस्टिस फ्रॉम द एरोटा इज रिटेन्ड and testicular vessel extend from the inguinal original lumbar position to the testes in the scrotum. डिसेंड ऑफ द टेस्टिस वो जो भी हम डिस्कस किया है वो उसको रिपीट कर रहा है कि टुवर्ड द एंड ऑफ द सेकंड मंथ के एंड में यूरोजेनाइटल मेसेंट्री अटैच टू द टेस्टिस एंड मीजोनेफ्रस. यूरोजेनाइटल मेसेंट्री टेस्टिस और मीजोनेफ्रस के को अटैच करती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से. With the degeneration of the mesonephros, जैसे mesonephros degenerate हो जाता है, the attachment serve as a mesentery of the gonads. Caudally it become a ligamentum known as a caudal genital ligament or testicular ligament भी इसको कहते हैं in the male. Also extend from the caudal pole of the testis is a mesenchymal condensation rich in extracellular matter. The gubernaculum, जिसको हम gubernaculum कह रहे हैं. Period to descent of the testis, this band of the mesenchyma terminate into the inguinal
region between the internal and external abdominal muscle. Period to descent of the testis. Period to descent of the testis. This band of the mesenchyma, which is called as the gubernaculum, in the inguinal region, remain in between the external and internal oblique muscle. Later, as the testes begin to descend toward the inguinal ring, अब जैसे इंग्वाइनल रिंग से नीचे और डिसेंड करेगा तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द गुबर्निकुलम विल बी फॉर्म्ड. वो जो था फ्रॉम द लंबर रीजन अप टू द इंग्वाइनल, वो इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द गुबर्निकुलम था. अब ये इंग्वाइनल तक तो आ गया. अब इंग्वाइनल से स्क्रोटम में जाना है तो उसका जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल गुबर्निकुलम पोर्शन फॉर्म होगा एंड ग्रो फ्रॉम द इंग्वाइनल रीजन टुवर्ड द स्क्रोटल स्वेलिंग. तो inguinal region से ये scrotum. When the testes pass through the inguinal canal, the extra abdominal portion of the gubernaculum contract the scrotal floor. Gubernaculum form in the female also, but the normal cases it remain rudimentary. Normally, testes reach in the inguinal region approximately 12th week of the gestation. Then they migrate in the inguinal canal. By the 28th week, they reach in the scrotum into the up to the 33 week. Clinical correlation and cryptorchidism. The connection between the abdominal cavity and the process vaginalis in the scrotal sac normally close in the first year after the birth. एक प्रोसेस वेजिनल पेरिटोनल का फोल्ड होता है जो स्क्रोटम में डिसेंड करके आता है. वो अप टू द फर्स्ट ईयर ऑफ बेबी बर्थ हुई और 1 ईयर तक वो क्लोज हो जाता है. After the if remain open, then causes the congenital inguinal hernia. मैंने आपको बताया कि process vaginalis एक पेरिटोनल फोल्ड है. जैसे टेस्टिस डिसेंड करता है विद द हेल्प ऑफ द गुबर्निकुलम, तो पेरिटोनियम का फोल्ड पाउच जो है उसके साथ डिसेंड करता है स्क्रोटम में. वो जो डिसेंड करता है तो पेरिटोनियम कम्युनिकेटेड through this process vaginalis up to the bottom of the scrotum. This communication will जो with the help of the process vaginalis है, तो ये process vaginalis up to the first year of the life, जो बेबी की फर्स्ट ईयर होते आए उसमें ये क्लोज हो जाता है. अगर ये persistent रहे तो we called it the congenital hernia. Sometime obliteration of this pathway is irregular, लिविंग स्मॉल cyst. ये इंग्वाइनल रीजन से अप टू द स्क्रोटम में ये प्रोसेस है, तो ये कभी कभी ऑब्लिटरेट जो है इरेगुलर होता है. ऊपर से भी ऑब्लिटरेट हो गया, नीचे भी ऑब्लिटरेट हो रहा है, बीच वाला पोर्शन प्रेसिस्ट रहा, तो वो स्मॉल सिस्ट बनाएगा अलोंग द कोर्स. अब वो इंग्वाइनल कैनाल पे हो, एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग की तरह की जगह पे हो, या जो है स्पर्मेटिक कार्ड है वहां तक हो, तो वो एक सिस्ट बनाता है. लेटर दिस सिस्ट में सीक्रेट द फ्लूइड. तो इसमें पेरिटोनल कवरिंग है, तो वहां से फ्लूइड की सिक्रेशन होती है. पेरिटोनियम हम डायलिसिस करते हैं, वहाँ वन इज द हीमोपेरिटोनियम, अदर पेरिटोनियल डायलिसिस, पीडी हम उसको कहते हैं. एक तो डायलिसिस नॉर्मली करते हैं जिसमें हम डायलिसिस मशीन होते हैं, फिर उसमें एक आर्टिफिशियल किडनी बनाते हैं और ये फ्लूइड एक तरफ से जाता है दूसरी तरफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो डायलिसिस का प्रोसेस आप करते हैं. कोई पेशेंट हीमोडायनामिकली फिट नहीं है, यानी कि उसका बीपी ड्रॉप है, तो उसमें हम पीडी डायलिटेशन डायलिसिस करते हैं. पीडी कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस. पेरिटोनियल डायलिसिस में यानी कि इतना ये फ्लूइड है उसमें एब्जॉर्ब की कैपेसिटी होती है, वो सीक्रेट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है. तो जो हमारा जो नॉर्मल फ्लूइड है पेशेंट का, वो ब्लड है, वो इसमें जो सिक्रेशन होती है जो डायलिसिस में यूज करते हैं वो पेरिटोनियम में डालते हैं, वहां से वो एक्सचेंज होती है
और वो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। इस हिसाब से वो जो अगर सिस्ट परसिस्टेंट रह गया कुछ पार्ट कहाँ से, इंग्वाइनल रीजन से अप टू द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम, ये प्रोसेस वेजिनलिस पार्ट ऑफ द पेरिटोनियम परसिस्टेंट रह जाए, ऊपर से भी ऑब्लिटरेट हो जाएगा, नीचे से भी ऑब्लिटरेट हो जाएगा, बीच वाला पोर्शन सिस्ट वो सीक्रेट करे सिस्ट फ्लूइड, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल ऑफ द नक, या वो हाइड्रोसिल यानी कि इंग्वाइनल कैनाल पे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, और मोस्टली अगर ये परसिस्टेंट पूरा रहे तो वो कंजेनाइटल हाइड्रोसिस उसको कहते हैं। तो स्पर्मेटिक कार्ड में था इन 97% मेल न्यूबॉर्न testes are present in the scrotum before the birth. Before the birth, in intrauterine life, 9 or 10th, 8th or 9th month में 97% जो है testes वो descend हो जाते हैं scrotum में. In the most of the remainder descent will be accompanied during the 3 month postnatally. बाकी जो 3% है वहाँ से मोस्टली जो है उनका 3% में 3 मंथ तक, 3 से 1 ईयर तक ये डिसेंड हो जाते हैं, यानी कि जो 97% डिसेंड हो जाते हैं, जो 3% है उसमें भी मोस्ट पार्ट्स होता है वो 3 to 1 ईयर तक वो डिसेंड हो जाते हैं। हाउ इन द लेस देन 1% इन्फेंट, वन ऑफ द बोथ टेस्ट फेल टू डिसेंड। 1% से भी कम है कि वो इन्फेंट में एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस फेल टू डिसेंड होते हैं। अगर वो फेल टू डिसेंड है, दिस इज द critical condition is called as a cryptorchidism and may caused by the decreased androgen. मैंने आपको कहा कि डिसेंड में एंड्रोजन हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन और मुलेरिन इनहिबिटरी सब्सटेंस जो मोस्ट पोटेंट फंक्शन था वो टेस्टोस्टेरोन का था। अगर टेस्टोन ये डिसेंड नहीं हुआ है, और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन क्यों डिसेंड नहीं हुआ, तो और भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जो मोस्टली जो काज है डिक्रीज अमाउंट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। अनडिसेंडेंट टेस्टिस फेल टू प्रोड्यूस द मैच्योर, जो अनडिसेंडेंट टेस्टिस है वो जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, एंड कंडीशन 3 to 5% रीनल एनॉमलीज। तो वो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ नहीं करेंगे तो इनफर्टिलिटी होगी। और जो स्क्रोटम में कुदरत की तरफ से टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों आता है, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, और ड्यूरिंग दिस प्रेशर दे विल नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और फिजियोलॉजिकली। सो कुदरत गिव अस opportunity, there's the descent, the testes come into the scrotum having a low pressure, and they produce a functionally active physiologically normal spermatozoa। अगर ये टेस्ट डिसेंड नहीं हुए, डिसेंड में फिर होता है इंट्रा एब्डोमिनल और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। मैंने आपको बताया कि टेस्टिस कहाँ पे बन रहे थे, लंबर रीजन में रिट्रोपेरिटोनली, फिर वहां से डिसेंड करते हैं, और इनिशियली फेज में वो इंग्वाइनल रिंग, इंटरनल इंग्वाइनल रिंग तक आते हैं। अगर ये इंटरनल इंग्वाइनल रिंग से बियॉन्ड हो, पीछे हो, तो यानी कि वो जो पूरा पाथवे फ्रॉम लंबर रीजन अप टू द इंटरनल रिंग, इसको हम कहते हैं इंटरनल इंट्रा एब्डोमिनल अनडिसेंडिंग टेस्टिस। अगर टेस्टिस फ्रॉम द इंटरनल रिंग से तो निकल आया है, लेकिन इंग्वाइनल कैनाल पे पड़ा हुआ है, यहाँ बेस ऑफ द स्क्रोटम पे पड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं अनडिसेंडिंग टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनली। तो फिर जो इंट्रा एब्डोमिनली है वो तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेप्रोस्कोपिकली हम देखते हैं, लेप्रोस्कोप की हेल्प से, तो उसको हम देखते हैं कि वो कहाँ पे है। और दूसरा अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। और तीसरा हम अल्ट्रासाउंड को जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है उसमें फ्लो हम देखते हैं। तो दीज आर द टेक्निक बाय व्हिच वी डायग्नोज एंड द अनडिसेंडेंट टेस्टिस के कहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर उसकी ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से होती है। जो इंट्रा एब्डोमिनल होता है उसको डिसेंड करना
बड़ा मुश्किल होता है और 2-3 प्रोसेस है जैसे हम 2 स्टेज में प्रोसीजर करते हैं। फिर उसको अगर इसको अनडिसेंडेंट टेस्टिस को उधर ही रखने दें, एक तो वो काम जो है उसका टेस्टोस्टेरोन की सीक्रेशन वो प्रॉपर नहीं करेगा, स्पर्म की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी। दूसरा, देयर इज द more chances of they will lead to the malignancy, testicular tumor की बड़ी ये होती है कि अगर आप सब विद इन 2 year अप टू द किसी बुक में लिखा है 1 year तक या 18 month तक आपने अगर वो इसको डिसेंड कर दिया ऑपरेशन करके उसको स्क्रोटम में लेके आए तो उसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस कम हो गए। यानी कि मेलिग्नेंसी खत्म नहीं हो जाएगी, फिर भी इसके चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप करेंगे, अगर 18 मंथ के बाद करेंगे तो डेफिनेटली वो दे विल लीड इन फ्यूचर मेलिग्नेंसी। सो कंडीशन को क्या कहेंगे? अनडिसेंडेंट क्रिप्टोआर्किटिज्म and may caused by the decreased androgen testosterone production. Undescended testes fail to the produce mature spermatozoa. They lead to the infertility and condition. The undescended testes condition is associated with 3 to 5% in the renal anomalies. डिसेंड ऑफ द ओवरी भी सेम तरीके प्रोसेस से होगी जैसे डिसेंड ऑफ द टेस्टिस हुआ। जब फर्क ये है कि अप टू द इंग्वाइनल रीजन तक ट्रू पेल्विस तक ओवरी आती है, वाइल द टेस्टिस also descend from the internal inguinal ring up to the bottom of the descend of the gonads means the ovary and test is considerably less in the female than in the male. Descent of the gonad is considerably less in the female than in the male. And the ovary finally settle just below the rim of the true pelvis. The cranial genital. And just 1 minute. So just below the rim, ligament, genital ligament, जिसको हम testicular ligament कह रहे हैं, अब इसको ovarian ligament, उसको हम कह रहे हैं suspensory ligament of ovaries. The ovary finally settle just below the rim of the true pelvis. The cranial genital ligament form the suspensory ligament. Cranial portion था और caudal portion था, तो इन ovary में वो suspensory ligament of ovary बनाएगा, where the caudal genital ligament form the ligament of ovary proper and the round ligament of the uterus. So round ligament of the uterus and ovarian ligament, they will form the caudal portion of the gubernaculum. The ligament, the later extend to the labia majora. तो लिबिया मेजोरा हमने कल स्क्रोटल सोइलिंग पढ़ी थी, तो एक जेनाइटल सोइलिंग थी, दूसरी स्क्रोटल सोइलिंग। जेनाइटल सोइलिंग जो स्क्रोटल सोइलिंग थी वो उससे स्क्रोटम की फॉर्मेशन बन रही थी। स्क्रोटम मेल में स्क्रोटम बना था और फीमेल में लिबिया मेजोरा बना था, और लिबिया माइनोरा जो था, जो यूरिथ्रल फोल्ड था, वो मेल में ज्वाइन करके ये पेनाइल यूरिथ्रा बना रहा था, फीमेल में वो ज्वाइन नहीं करते हैं और ओपन रहते हैं और लिबिया माइनोरा की फॉर्मेशन करवा रहे थे। तो इस पिक्चर में आप देखें तो ये गुबर्निकुलम और ये मीजोनेफ्रिक जो है वो आपस में ज्वाइन है। तो इसका एक अपर पोर्शन था, एक लोअर पोर्शन था। अपर पोर्शन जैसे मीजोनेफ्रिक का डिजेनरेट हो जाएगी तो ये टेस्टिस जाके रहता है। अब ये टेस्टिस इंग्वाइनल रीजन तक आ गया और इंग्वाइनल रीजन से फिर ये डिसेंड कर रहा था। तो इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द गुबर्निकुलम, इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द गुबर्निकुलम ये है, और जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल गुबर्निकुलम है ये है। अब ये जो इंग्वाइनल रिंग तक पहुंच रहा है तो ये पेरिटोनियल कैविटी है, और ये पेरिटोनियल कैविटी का ये प्रोसेस वेजिनलिस है। प्रोसेस वेजिनलिस नॉर्मली जो है ऑब्लिटरेट हो जाता है, ये अप टू द स्क्रोटम तक आ जाता है, और स्क्रोटम में तो ये जो पाथवे है तो ये पूरा का पूरा ऑब्लिटरेट हो जाता है। इसका लोअर पोर्शन प्रोसेस वेजिनलिस का ट्यूनिका वेजिनलिस हो जाता है और वो प्रेसिस्टेंट रहता है, और
बाकी ऑब्लिटरेट हो जाता है। अगर ये ऑब्लिटरेट नहीं हो तो ये पेरिटोनियल कैविटी कम्युनिकेटेड करते हैं, तो इसको इंग्वाइनल कंजेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया कहेंगे कि एब्डोमिनल विसरा जो है वो पूरा का कंजेनाइटल ये प्रोसेस वेजिनल रेसिस्टेंट है और इससे ये आ रहे हैं। अगर ये ऊपर से भी ऑब्लिटरेट हो जाए, नीचे से भी ऑब्लिटरेट हो जाए, लेकिन इसका कुछ पोर्शन परसिस्ट रहे जैसे ये है, तो ये सिस्ट की सिस्ट बन जाएगी। सिस्ट में अगर ये पेरिटोनियम का फोल्ड है तो पेरिटोनियम अब फ्लूइड सीक्रेट करती रहती है और एब्जॉर्ब भी करती है, तो ये सीक्रेशन करेगी, तो उसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। तो दिस इज द टेस्टिस, दिस इज द कार्डल लिगामेंट ऑफ लिगामेंट एंड गुबर्निकुलम। तो कार्डल पोर्शन पेरिटोनियम का फोल्ड था, एक अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन, ये कार्डल पोर्शन ऑफ द जेनाइटल लिगामेंट और टेस्टिकुलर लिगामेंट और ओविरियल लिगामेंट है, और ये गुबर्निकुलम का एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोर्शन, यहाँ तक इंटरनल रिंग है, और यहाँ से ये जैसे नीचे आ जाएगा तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द गुबर्निकुलम, ये टेस्टिस है। अब ये डिसेंड हो रहा है अप टू द स्क्रोटम में आएंगे, और ये प्रोसेस वेजिनस है, जो पेरिटोनियम का पोर्शन है, फोल्ड है, बैलून है, जो डिसेंड हुआ है थ्रू दिस गुबर्निकुलम अप टू द स्क्रोटम। नॉर्मली ये जो है ऑब्लिटरेट हो जाता है, लेकिन कभी कभी प्रेसिस्टेंट, अगर ये पूरा प्रेसिस्टेंट रहे तो कंजेनाइटल हर्निया भी करवा सकता है, कंजेनाइटल हाइड्रोसील। अगर पेरिटोनियम का सिर्फ फ्लूइड आए और फ्लूइड की एब्डोमिनल कलेक्शन हो तो उसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। अगर पेरिटोनियम का जो विसरा हो, विसरा में गट भी है और ओमेंटम भी है, अगर वो डिसेंड करेंगे तो उसको हम हर्निया कहते हैं। हर्निया था the descent of the testis during the second month, in the middle of third month, peritoneum lining the coelomic cavity, evaginate and scrotal swelling, where it form the inguinal process, inguinal vaginal process. ये जो वजाइनल प्रोसेस है वो जो मोस्टली ये डीजनरेट हो जाता है, लेकिन इसका जो लोअर पोर्शन है वो प्रेसिस्टेंट रहता है, जिसको हम ट्यूनिका वेजिनलिस कहते हैं। तो इसमें देखिए आप टेस्टिस इंग्वाइनल रीजन से अब ये फर्दर डिसेंड, ये इंग्वाइनल रीजन से ये डिसेंड करके आया है, और ये जो प्रोसेस वेजिनलिस था ये भी अब नॉर्मली ऑब्लिटरेट हो गया है, और इसका लोअर पोर्शन ट्यूनिका वेजिनलिस persistent tunica vaginal वे two layer, one is a visceral layer which is attached to the outer surface of the testis, and parietal layer of the tunica vaginalis. Here the fluid normally small fluid occur and absorb. If this fluid secretion and absorption become disturbed, they will lead to the hydrosil. This is all about the descent of the testis and anomalies of the test. तो ये जैसे डिसेंड हुआ तो जो एक्सटर्नल एब्डोमिनल वाल थी, 3 वाल थी, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनल, वो ही उसकी एक्सटेंशन स्क्रोटम में भी आएगी। और ये कहें तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोसेस वेजिनल प्रेसिस्टेंट है, ये कंजेनाइटल हर्निया भी करवा सकता है, कंजेनाइटल हाइड्रोसील करवा सकता है। तो अगर एब्डोमिनल विसरा यानी कि गट और ओमेंटम की डिसेंड होगा तो उसको हम इंग्वाइनल हर्निया कहेंगे। अगर इसमें फ्लूइड आएगा तो उसको हम हाइड्रोसील कहेंगे। ये देखो नॉर्मली ये अपर से भी ऑब्लिटरेट हो गया है, लोअर से भी ऑब्लिटरेट हो गया है, लेकिन बीच में प्रेसिस्टेंट है और ये सिस्ट की फॉर्मेशन करेगा, और सिस्ट अगर फ्लूइड की सीक्रेशन करे और एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं हो तो दे विल लीड टू द हाइड्रोसील ऑफ द नक कहते हैं, यानी कि इंग्वाइनल कैनाल पे जो प्रेसिस्टेंट रहे तो उसको हम कह रहे हैं। ये देखें आपका ट्यूनिका वेजिनलिस, प्रोसेस वेजिनलिस का लोअर पोर्शन प्रेसिस्टेंट रहेगा, उसके अब ये है स्क्रोटल फेशिया कि कौन कौन सी है, तो एब्डोमिनल मस्कुलेचर नीचे रन कर रहा है, तो उसमें एक्सटर्नल, इंटरनल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल जो है नीचे रन करेंगे, तो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, और उसको तीसरा क्यों कहने गए क्रीमेस्ट्रिक फेशिया। क्रीमेस्ट्रिक इंटरनल जो है क्रीमेस्ट्रिक फेशिया, और
जो इंटरनल ऑब्लिक हो वो क्रीमेस्टिक जो है, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो है वो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो बन जाती है, और एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल दे विल फॉर्म द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। 3 लेयर थे, तो एक था एक्सटर्नल, इंटरनल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनल। एक्सटर्नल एब्डोमिनल जैसे स्क्रोटम में डिसेंड करेगा तो वो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया हो जाएगा। अब जो इंटरनल ऑब्लिक फेशिया जो है जैसे वो डिसेंड करेगा तो वो क्रीमेस्टिक फेशिया बन जाएगा, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल जैसे डिसेंड करेगा दे विल लीड द इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। तो इस पिक्चर में आप देखें कि ये तीनों लेयर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल, इंटरनल और क्रीमेस्टिक है। तो क्रीमेस्टिक जो इंटरनल है वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनल, ये आपका बाहर वाला आप देखें एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, ये बन गया आपका, अल्लाह आपका भला करे, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल जैसे स्क्रोटम में आए तो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बन गया। अब ये जो है उसके बाद ये जो थिक कलर की है इंटरनल ऑब्लिक मसल, internal oblique muscle in that scrotum, they will change into the cremastic fascia and other transverse abdominal। ये एक ये था, दूसरा ये, तीसरा ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस यहाँ से आ रही है, तो ट्रांसवर्स एक्सटर्नल, इंटरनल और ये transverse abdominal become a internal spermatic fascia. This is a scrotal layer. सॉरी बेटा। तो ये टेस्ट थे, टेस्ट में सेमिनिफ्यूज ट्यूब्यूल होंगे, फिर वेरिटी टेस्टिस, इफ्रंट डक्टिलस, they join the epididymis। एपिडाइडाइमस में स्पर्म सीमेन की मैच्योरेशन होती है, स्पर्म की मैच्योरेशन होती है, और उसमें फर्दर जो है मोटाइल भी होता है, और मैच्योरेशन और मोटाइल नंबर जो है वो काउंट जो सेमिनिफ्यूज में है वही होता है। लेकिन तो एपिडाइडाइमस के ये वास्ट डिफरेंट आगे चल के इजैक्यूलेटरी डक्ट में करेगा। तो ये आप देखेंगे हाइड्रोसील और डक्टस डिफरेंट है, ये सारा कुछ दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू बेटा। एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी, अच्छा राहिल, राहिल अदा हेॾा अचो। हाणे लेक्चर पूरो थियो, इनखे छा कयूं? हाणे हिनखे पहिरीं तव्हां करे पास कयां। स्टाफ किथे आहे? हेठियों?